اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے اور جن لوگوں نے ہم سب کو آپ سب کو پڑھنا لکھنا سکھایا، دین سے آشنا کیا، قرآن سے آشنا کیا، دین کے احکام سے آشنا کیا، اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کیا، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں ان سب کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ میں بہت ہی سمپل لینگویج میں، آسان زبان میں آج پھر مولا علی علیہ السلام کی کچھ باتیں اپنے کو اور آپ کو سناؤں گا، اپنے کو پھر آپ کو سناؤں گا۔ یہ ہے حدیث نمبر 150 میں نے 50 لکھا ہے، 150۔ ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ ایک آدمی کو احساس ہوا کہ مجھے مولا علی کے پاس جانا چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے۔ کن کے پاس جانا چاہیے؟ مولا علی کے پاس جانا چاہیے اور کچھ سیکھنا چاہے۔ تو انہوں نے مولا سے سوال کیا کہ مولا مجھے نصیحت کیجئے، مجھے نصیحت کیجیے۔ اچھا، 1400 سال پہلے ایک آدمی نے سوال کیا مولا سے مجھے نصیحت کیجئے۔ آج ہمیں وہ باتیں سننی چاہیے یا نہیں؟ کیسے 14 سال گزر گئے؟ 1400 سال پرانی باتیں آج مفید ہو سکتی ہے؟ ہاں؟ بہت اچھا۔ یہ کہہ رہی ہے بیٹی کی مولا کا کلام ہے، وہ صرف 1400 سال پہلے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے یہ؟ آپ لوگ ان کی بات سے متفق ہیں؟ تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے۔ یہ تو بچوں کے گفٹ ہے نا؟ کچن کے؟ اچھا، تو پھر دے دیجیے آپ ان کو۔ تو یہ کچن کے گفٹ ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں کبھی کبھی یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ملے اور مجھے نصیحت کرے؟ کبھی کبھی ایسا دل میں آتا ہے کاش کوئی ملتا مجھے نصیحت کرتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیا آپ نے دل سے ایک آواز آئی ہو، کوئی ملتا، کوئی سینئر ملتا، کوئی دادی ملتی، کوئی کیا کہتے ہیں فرینڈ ملتی، کوئی بزرگ ملتا، کوئی ٹیچر ملتا اور میں اس کے پاس جاتا، میں اس سے کہتا میری یہ مشکل ہے، میری نصیحت کرو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اچھا، ایک اور سوال، یہ کس بات کی نشانی ہے کہ اگر کسی کے اندر سے آواز آ جائے کہ مجھے کوئی نصیحت کرے؟ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کس بات کی؟ ہاں بیٹا، نفس۔ کس کی؟ نفس۔ نہیں، کس بات کی نشانی ہے یہ؟ نہیں، یہ کس بات کی نشانی ہے کہ اگر اندر سے انسان محسوس کرے مجھے کوئی نصیحت کرے؟ مثلا کبھی کبھی ایک شادی شدہ عورت کو یہ احساس ہو جائے میں تو بار بار اس مہینے میں 4-5 مرتبہ میں نے اپنے شوہر کو کیا انسلٹ کی، توہین کی، سب کے سامنے میں نے اس کو ڈانٹا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں کیسے اپنے غصے کو کنٹرول کروں؟ کوئی آئے میں کسی کے پاس جاؤں، میں کیسے اس کو کنٹرول کر سکتی ہوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان، اگر یہ آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان زندہ ہے۔ اگر کسی غلط کام کرنے کے بعد پشیمانی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے۔ اگر گھر میں رہنے کے بعد، اسکول میں رہنے کے بعد، معاشرے میں رہنے کے بعد کسی وجہ سے غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے، پھر انسان کے اندر یہ چیز
احساس ہو جائے کوئی مجھے ملے مجھے نصیحت کرے، یا خود سے کوئی کتاب ڈھونڈے اس کا مطالعہ کرے، یا خود سے یوٹیوب پر سرچ کرے کہ کوئی اس سلسلے میں کوئی ویڈیو ملے اس کو سنے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے اندر ابھی ایمان، اس انسان کے اندر ابھی ایمان۔ تو حدیث نمبر 100 بہت اچھا، حدیث نمبر 150 میں ایک ایسا ہی انسان جس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنے مولا علی مرتضیٰ کے پاس جانا چاہیے اور میں ان سے کہوں مولا مجھے نصیحت کیجیے۔ نصیحت یعنی نصیحت یعنی نصیحت یعنی مرنے سے پہلے کچھ باتیں نہیں، مرنے سے پہلے کیا، نصیحت یعنی اسی دنیا میں کیسے ہم وہ باتیں جن کے پر عمل کریں تو اسی دنیا میں ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ مرنے سے پہلے کی باتیں نہیں، وہ وصیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وصیت اور نصیحت میں، وصیت یعنی مرنے والا جو آخری ٹائم یہ کرتا ہے، یہ لو یہ پیسے اس سے مسجد بناؤ، یہ لو یہ پیسے اس سے امام بارگاہ بناؤ، عاشور خانہ بناؤ، یہ لو یہ پیسے اس سے کیا بناؤ، اسکول بناؤ، یہ لو یہ پیسے یہ غریبوں کو دے دو، ہاں وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت۔ اس انسان نے مولا سے کیا کہا؟ مجھے کیا کیجئے؟ نصیحت۔ نصیحت ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے آدمی جاگ جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا، سویا ہوا ہو، وہ نہ جاگ جائے تو ہم اس پر کیا ڈال دیتے ہیں؟ پانی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جاگ جاتا ہے۔ یا جیسے آپ کو کبھی نیند آ جائے، کلاس روم میں آپ محسوس کریں مجھے نیند آ رہی ہے، یا گاڑی پر آپ کہیں جا رہے تو ڈرائیور کو احساس ہو جائے، آپ کا کوئی ریلیٹو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا شوہر، آپ کو باپ ہو، آپ کو یہ محسوس ہو جائے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں گاڑی روکیے، یہ لیجیے ایک بوتل پانی، ٹھنڈا پانی اپنے منہ پر کیا ڈالیے تاکہ آپ کی نیند کیا اڑ جائے، ہے نا۔ تو وہ یا ایسے آپ کے گھر میں کوئی کام ہو لیکن آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ منہ دھونے جاتی ہے، یا کوئی اٹھ نہیں رہا تو آپ اس کو کیا پانی ڈال دیں منہ پر، وہ جاگ جاتا ہے۔ نصیحت لکھو بچوں، نصیحت ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے آدمی جاگ جاتا ہے۔ کیا جاگ جاتا ہے؟ روح جاگ جاتی ہے۔ کیا جاگ جاتی ہے؟ روح جاگ جاتی ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، انسان غفلت سے باہر آتا ہے۔ ان باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دل جاگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کام سے آنکھیں کھل جاتی ہے، کبھی کبھی کسی کچھ باتوں سے انسان کا دل اور انسان کی روح جاگ جاتی ہے، روح بیدار ہو جاتی ہے، روح زندہ ہوتی ہے۔ اب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو انرجی ملتی ہے، اب اہل بیت کی باتیں سنتے ہیں تو کیا روح کو غذا ملتی ہے، روح کو انرجی ملتی ہے۔ تو یہ آدمی آیا مولا سے کہا مجھے نصیحت کیجئے، تو نصیحت یعنی کون سی باتیں بچوں؟ روح کو جگانے والی باتیں۔ نصیحت یعنی نصیحت یعنی نصیحت، روح کو نصیحت یعنی روح کو جگانے والی باتیں۔ صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ اوکے۔ تو اب اس نے جب نصیحت کی بات کی تو مولا نے 30 باتیں ان کو سنائی۔ کتنی باتیں؟ کتنے باتیں؟ اس نے کہا مجھے نصیحت کیجئے کہ میں جاگ جاؤں، میں گھر میں جاگ جاؤں، میں معاشرے میں جاگ جاؤں، میں کام پر جاؤں تو جاگ جاؤں، میرے ہاتھ میں موبائل ہو تو میں جاگ جاؤں، ہاں میرے گھر میں کوئی نہیں ہو میں اکیلے ہوں تو میں جاگ جاؤں، میں اسکول میں رہوں تو جاگ جاؤں، میں جاگ جاؤں، بیدار رہوں، ہاں۔ تو مولا نے 30 باتیں ان کو سنائی۔ میں وہ 30 باتیں نہیں، ان 30 باتوں میں 10 باتیں سناؤں گا۔ 30 باتوں میں کتنی باتیں سناؤں گا؟ 10 باتیں کس کو جگانے والی؟ 10 باتیں کون سی باتیں؟ روح کو۔ حدیث نمبر آپ سب کو انعام ملا۔ آپ بلند آواز میں بی بی زہرا کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تو پہلی بات مولا نے کہی، مولا نے ان سے کہا لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل۔ دیکھو بھائی تو نصیحت مانگنے آیا ہے، جاگنے آیا ہے، دیکھو اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر عمل کے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت میں پتہ نہیں کہاں کہاں کیا جگہ مل جائے گی۔
बगैर अमल के जन्नत की उम्मीद रखना छोड़ दो। किसके बगैर? किसके बगैर? दुनिया में आपने देखा है कि बगैर मेहनत के कोई इंसान पास हो जाए? आपने देखा है जब स्कूल का रिजल्ट आ जाए 50-60 लोग ऐसे हों जो स्कूल न गए हो और वो टॉप उन्होंने किया हो? हाँ, देखा है आपने? देखा आपने? हैदराबाद में कोई ऐसा है? आपके क्लास में ऐसा है? ऐसा मौजूदा होता है हैदराबाद में? होता है कि कोई बगैर पढ़े लिखे घर में सोता रहे, 4 बजे तक स्कूल भी न जाए और फिर रिजल्ट जिस दिन एग्जाम हो वो एग्जाम दे और पता चला वो पूरी तरह से पास हुआ। हो गया है या नहीं? दुनिया की कामयाबी बगैर मेहनत के नहीं मिलती है, तो ये कैसे मुमकिन है आखिरत की कामयाबी कैसे मिले बगैर? लेकिन अक्सर लोग हम ऐसा ही समझते हैं, हम समझते हैं मजलिस में जाएंगे 2 कतरे आंसू बहाएंगे, नमाज नो, कुरान नो, अच्छा अखलाक नो, सुबह सवेरे जागना नो, हाँ दीन पर चलना कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा ही समझते हैं, हम ऐसा ही समझते हैं, है ना बच्चों? ऐसा ही समझते हैं ना, अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं ना। जबकि मजलिस में किन लोगों की बातें होती है? मजलिस में किन लोगों की बातें होती है? नहीं, वो कैसे लोग थे? मजलिस में उन लोगों की बातें होती है जो हर वक्त क्या मैदान अमल में हाजिर होते थे। जंग भी होती थी तब भी नमाज छूटती थी या नहीं छूटती थी? तीर बरसते थे तब भी नमाज छूटती थी या नहीं छूटती थी? सर नेज़े पर सवार होता था, कुरान की तिलावत छूटती थी या नहीं छूटती थी? खाना नहीं होता था, पीना नहीं होता था, खीमे से कुरान की आवाज आती थी या नहीं आती थी? आती थी या नहीं आती थी? कैद खाने में अली की बेटी होती थी, नमाज सब छूटती थी, पंचगाना नमाज छूटती थी, अच्छा अखलाक छूटता था? छूटता था अच्छा अखलाक? नहीं छूटता था। जब ऐसे लोग बगैर सख्तियों में अमल करना नहीं छोड़ते हैं तो हम कैसे अमल छोड़ देते हैं? तो मौला ने पहली बात की, देखो दुनिया में बहुत सारे लोगों को शैतान ने धोखा दिया है। वो धोखा क्या है कि बगैर अमल के इंसान को जन्नत क्या मिल जाती है। मौला हमसे कहते देखो हाँ फलानी, फलान बेटी, फलान इंसान, फलान आलिम, फलान तालिब इल्म, उन लोगों में से न होना जिनको शैतान ने धोखा दिया। बगैर अमल के इंसान को आखिरत में क्या मिलेगी? अच्छा मकाम मिलेगा। ये फिक्र छोड़नी चाहिए, है ना बच्चों? है ना बच्चों? तो पहली बात क्या हुई? पहली नसीहत क्या? अच्छी नसीहत है या नहीं है? अच्छी नसीहत है या नहीं है? नहीं, आपको कहना चाहिए बहुत अच्छी नसीहत है, क्योंकि हमें और आपको भी शैतान ने ये धोखा दिया या नहीं दिया? या नहीं दिया है? दिया है ना बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया। नहीं, वो अच्छा अमल जो अहले बैत ने किया हमें वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अहले बैत का नाम लेना काफी है। तो मौला ने क्या कहा? पहली बात क्या कही मौला ने? अमल के बगैर, अमल के बगैर जन्नत की उम्मीद रखना है या नहीं रखना है? अमल के बगैर, अमल के बगैर जन्नत। आपके घर में, आपके घर, आप अपने घर को सजाते हैं, उस घर को सजाने में आपको काम करना पड़ता है या नहीं? ऐसे ही बैठते हैं, इशारा करते हैं चीजों को, फलान चीज फलान जगह पे फिट हो जाए, फलान चीज फलान जगह सेट हो जाए, फलान चीज फलान जगह, ऐसे ही होता, खुद ब खुद होता है। आप जब घर, अगर अभी आपने जब घर से आए होंगे, कपड़े आपने बिखेर के रखे होंगे, बर्तन बगैर धोए हुए रखे होंगे, वो खुद से वो बर्तन साफ हो जाएंगे? वो कपड़े खुद से क्या ठीक हो जाएंगे? वो कपड़े खुद से धोए जाएंगे? उन कपड़ों पर खुद से इस्त्री हो जाएगी? क्या करना पड़ता है? यानी घर की 4 दीवारी को भी आपको एक अच्छा नमूना और अच्छी डिजाइनिंग करने के लिए आपको खुद अमल करना पड़ता है। तो आप आखिरत की जिंदगी की अच्छी डिजाइनिंग करने के लिए, आखिरत की जिंदगी की अच्छा नक्शा खींचने के लिए, आखिरत की जिंदगी का क्या एक खूबसूरत जगह बनाने के लिए क्यों अमल करने की जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं अमल करने की जरूरत पड़ेगी? जब आप किसी के घर में जाते हैं, आप देखते हैं अरे कितना घर सजाया हुआ, तो आप क्या कहते हैं? कौन फरिश्ता आया था जिसने ये घर खूबसूरत बनाया? ये कहते हैं, बल्कि आप उसकी तारीफ करते हैं कि आपने देखिए कितनी अच्छी मेहनत से ये घर अच्छा बनाया है। तो आखिरत का घर कैसे बनेगा? हाँ, आखिरत का घर कैसे बनेगा? जब दुनिया का घर
बगैर मेहनत के खूबसूरत नहीं बनता है, तो आखिरत का घर कैसे बनेगा? मेहनत के बगैर बनेगा? हाँ बेटा, आखिरत का घर बगैर मेहनत के बनेगा? आपका दुनिया का घर खूबसूरत बगैर अमल के नहीं बनता, आखिरत का घर कैसे खूबसूरत बनेगा? अमल से, अच्छे काम से, मेरी और आपकी मेहनत से। मौला उसको नसीहत करते, देखो बहुत सारे लोगों को क्या शैतान ने क्या दिया है, क्या दिया है? उस जमाने में या आज भी धोखा है? आज भी बहुत सारे लोगों को धोखा है। आज भी हमारी कितनी बच्चे सुबह नमाज को अव्वल वक्त नहीं उठती है। आज भी हमारी बहुत सारी बेटियां सुबह रोजाना कुरान नहीं पढ़ती है ना? उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का धोखा था, आज भी बहुत सारे लोगों का धोखा है। कितनी अच्छी बात मौला ने कही, तो उस मौला की शान में एक सलवात पढ़ दीजिए। तो पहली बात, मैं आगे बढ़ूं या नहीं, यही एक काफी है? सुनेंगे और बातें? तो सलवात पढ़ दीजिए। फिर दूसरी बात मौला ने कही कि देखो, आपको पता है कि हम बुरे लोगों को बहुत बुरा कहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते हैं? बुरे लोगों को हम क्या कहते हैं? बुरा कहते हैं। अगर हम अभी सड़क से निकलें और हम देखें कोई इंसान अपनी मम्मी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई बेटी अपने बाबा के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो अगर आपकी वो क्लासमेट हो, अगर वो आपके स्कूल में पढ़ती हो, कम से कम जब आप सुबह अगले दिन आपको स्कूल में देखेंगे तो आप अपनी उस सहेली से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप उसको क्या करेंगे? समझाएंगे। नहीं, ऐसा अच्छा नहीं होता है कि आप अपनी मम्मी के साथ बदतमीजी करें, आप अपने डैडी के साथ क्या बदतमीजी करें। हाँ, मौला फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग जब कोई बुरा काम देखते हैं तो उनको उस बुरे काम से नफरत होती है, लेकिन खुद कंटिन्यूअसली बुरे काम करते, खुद बुरे लोगों से नफरत होती है। मौला फरमाते हैं उनमें से न होना, हाँ, उनमें से न होना जो गुनाहगारों से नफरत करते हैं, मगर खुद गुनाहगारों में से एक है। अच्छा, हम देखिए, हम कितना बुरा भला कहते हैं करबला के जालिमों को, कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं या नहीं कहते हैं? लेकिन मेरे और आपके हाथों भी कभी कभी जुल्म होता है। कैसे कैसे कैसे? हम जालिमों से और बुरे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे और आपके हाथों भी क्या क्या होता है? इनको क्या करना बेटी? मुझे लेके जाना, ये मेरे गिफ्ट हैं, मुझे नहीं मिलेंगे ये गिफ्ट। शाबाश, बहुत अच्छी प्यारी बेटी। तो मौला फरमाते हैं उन लोगों में मत होना जो गुनाहगारों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, मगर खुद गुनाहगारों में से एक होते हैं। जैसे हम बड़े गुनाहगारों से, बड़े जालिमों से नफरत करते हैं, लेकिन खुद हम भी अपनी सतह पर जुल्म करते हैं। मसलन एक बेटी को माँ बाप मेहनत करते हैं ये पढ़ाई के लिए, माँ बाप निकलते हैं, काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीने करते हैं, लेकिन वो बच्चे केयर ही नहीं करते अपनी मम्मी डैडी की मेहनत का। ये क्या है? एक किस्म का क्या है? ये भी एक किस्म का जुल्म है। ये भी एक किस्म का क्या है? जुल्म है। या नहीं, मेरी सहेली है, पढ़ना चाहती है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यूअसली क्या व्हाट्सएप कॉल करती हूँ, घर बुलाती हूँ, टाइम वेस्ट करती हूँ। किसी का टाइम वेस्ट करना क्या है? किसी का टाइम वेस्ट करना क्या है? किसी का टाइम वेस्ट करना गुनाह है, और किसी का टाइम बचाना नेक काम है। किसी का टाइम बचाना क्या है? नेक काम है।
किसी औरत की घर की जिम्मेदारी है, वो 24 घंटों उधर उधर रहती है। एक औरत की जिम्मेदारी है बच्चों को संभाले, लेकिन वो बच्चों को संभालती नहीं है, बच्चों का केयर करती नहीं है, वो स्कूल एक मरतबा भी नहीं जाती है, एक भी माइबिस उससे नहीं छूटती है, लेकिन एक भी दिन क्या साल में अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में स्कूल का चक्कर नहीं लगाती है। प्रिंसिपल से बात करती, मेरी बेटी 1 साल से आ रही है, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। टीचर से बात नहीं कर रही है, मेरी बेटी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। हम मजलिसों का तबरुक लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बीवी ज़हरा ने औलाद की सूरत में हमें तबरुक दिया है, हम कभी इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि ये बेटी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इसके दोस्त कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, इसकी सहेलियां कैसी है, अच्छे हैं या बुरे हैं। हमने कभी ये फोन इस्तेमाल नहीं किया। इसके क्लासमेट के इससे बात करते, क्लास टीचर से बात करते, उससे पूछते हमारी बेटी का कैरेक्टर कैसा है, हमारी बेटी का किरदार कैसा है, हमारी बेटी के मार्क्स कैसे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते या नहीं करते हैं? करते या नहीं करते हैं? हम एक स्कूल में हैं, कंटिन्यूअसली कुछ पेरेंट हमें इतना तंग करते हैं कि तौबा तौबा, इतना तंग करते हैं। अगर डायरी पर नोट नहीं लिखा, रात को फोन आता है। अगर किसी जगह हमने देखा कि टीचर नहीं आया तो वो रात को फोन करते हैं। कंटिन्यूअसली अपने बच्चों का केयर करने वाले पेरेंट्स उन्हीं घरों में कल जाके क्या शाइनिंग स्टार निकलते हैं, उन्हीं के घरों में क्या चमकते हुए सितारे निकलते हैं। हम भी बहुत सारे जुल्म करते हैं, हम भी बहुत सारे कोताहियां करते हैं, और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अपने बच्चों के बारे में गफलत बरतना। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अपने बच्चों के बारे में क्या बरतना? गफलत बरतना। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अपने बच्चों के बारे में गफलत बरतना है। उनके जो पढ़ाई का सीजन है, मैं परसों इसी हैदराबाद में एक जगह क्लास दे रहा था कुछ बेटियों के साथ, तो उन बेटियों ने कहा हम संडे को 4 बजे उठते हैं। अगर कोई माँ देख रही है कि मेरी बेटी क्या 4 बजे संडे को उठ रही है, और वो टस से मस नहीं हो रही है कि भाई ये 4 बजे उठ रही है, यानी 18 घंटा ये सो रही है, 20 घंटा सो रही है। रात को अगर 12 बजे एक बेटी सो जाए और दूसरे दिन 4 बजे उठ जाए, कितने घंटे होते हैं? हाँ, 14 घंटे। जबकि दुनिया में जो कामयाब लोग हुए ना, बहनों बेटियों, दुनिया में जो कामयाब लोग हुए ना, वो संडे के दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी छुट्टी क्या छुट्टी नहीं होती है। तब जाके जो मस्जिदों में हम दुआएं मांगते हैं, मेरे मौला मेरी बेटी ऐसी बने, मेरे मौला मेरा बेटा ऐसा बने, तब जाके ये दुआएं क्या कबूल? कब? जब हम ख्याल करें कि नहीं इस बेटी की घर में अच्छी तरबियत करे। तो मौला फरमाते हैं देखो उन लोगों में से ना होना जो बुरे लोगों से नफरत करते हैं लेकिन खुद बुरा काम करते हैं, जो गुनाहगारों से नफरत करते हैं लेकिन खुद क्या गुनाहगार होते हैं। कुछ गुनाह दिखाई देते हैं, मसलन अगर कोई बेटी सड़क पर क्या बगैर पर्दे के चले, ये गुनाह दिखाई देता है। अगर एक औरत घर से बाहर बगैर पर्दे के निकले, ये गुनाह दिखाई देता है। लेकिन यही औरत अगर घर की चार दीवारी में बच्चों की तरबियत का ख्याल न रखे, ये गुनाह दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बेपर्दा होने से ज्यादा खतरनाक क्या है? बेपर्दा होने से ज्यादा खतरनाक गुनाह है। क्यों? ये एक बच्चे की सलाहियत के बारे में गाफिल है, ये एक बच्चे की तरबियत के बारे में गाफिल है, ये एक बच्चे की क्या बेहतरी के बारे में गाफिल है। मेरी बात सही है या नहीं है? तो अपने माँ बाप की सेहत सलामती के लिए एक सलावत पढ़े। और तीसरी बात, 10 बातें आज मैं कहूंगा। तीसरी बात, आप लोग लेट आए या मैं लेट आया? कौन लेट आया? हाँ, कोई भी नहीं। कौन लेट आया? कौन लेट आया बेटा? कौन लेट आया? मैं या आप? आप लोग लेट आए फिर मैं लेट आया। तो तीसरी बात मौला ने कही, अच्छी बात कह रहे हैं मौला या नहीं कह रहे हैं? तीसरी बात मौला कह रहे हैं, देखो उन लोगों में से मत होना, उन लोगों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन लोगों में मत होना जो अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं मगर उनका अच्छा अमल नहीं करते।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है बेटी? ये तीसरा पॉइंट क्या है? उन लोगों में मत होना जो अच्छे लोगों से क्या करते हैं मगर उनका अच्छा अमल। जैसे हम, दुनिया के सबसे अच्छे लोग कौन है? अहले। दुनिया के सबसे अच्छे लोग कौन है? अहले। हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके अमल से मोहब्बत, क्या मतलब उनके अमल से मोहब्बत नहीं करते? यानी वो जो अहले बैत करते हैं वो हम करते। अहले बैत नमाजें पढ़ते हैं, हम पढ़ते। अहले बैत कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते। अहले बैत हक का साथ देते हैं, हम हक का साथ देते। अहले बैत हमसायों का ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, हम हमसायों का केयर करते। अहले बैत कभी कोई बुरे काम को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन हम बुराई को छोड़ते है ना। जो अहले बैत करते हैं वो नहीं करते हैं। अहले बैत सड़क पर अपना वक्त जाया नहीं करते, हमारे नौजवान सड़कों पर वक्त जाया करते हैं। अहले बैत ने किसी को नहीं सताया, हम माँ बाप को भी सताते हैं, बहन भाइयों को भी सताते हैं, पड़ोसियों को भी सताते हैं। रात के 2-2 बजे तक हमारे घर से क्या लाउड स्पीकर की आवाज जाती है। पड़ोसियों को उससे आराम मिलेगा या उनकी नींद उड़ जाएगी? क्या हो जाएगी? उनकी नींद उड़ जाएगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम जानवरों तक को भी क्या तकलीफ नहीं देते, तो इंसानों की तो बात ही नहीं है, काफिरों की तो बात ही नहीं है। काफिर को भी अहले बैत क्या तकलीफ देते थे या नहीं देते थे? हमारे मौला ने देखा कि मेरे दुश्मन प्यासे हैं, उन दुश्मनों को भी पानी पिलाया। नहीं पिलाया यार? पिलाया ना। तो मौला फरमाते हैं उन लोगों में से ना होना जो अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का अच्छा अमल। इसी मुहर्रम में आपने कितनी अच्छी बातें सुनी अहले बैत की, उन अच्छी बातों में कितनी बातों को आप अमल करते? कोई बता सकता है इस मुहर्रम में मजलिसों में अहले बैत की, करबला वालों की 5 अच्छी बातें जो आपने सुनी है? 5 अच्छी बातें जो आपने अहले बैत की सुनी, कोई बता सकता है? 5 अच्छी बातें जो आपने करबला के शहीदों के बारे में सुना है, कोई बता सकता है? मेरी बात समझ में आई? करबला के शहीदों की 5 अच्छी बातें कोई बता सकता है? हाँ बेटी, शाबाश। इमाम हुसैन जंग से पहले नमाज पढ़े और फिर जंग शुरू करी। बहुत अच्छा, अच्छी बात है ना ये? कब सीखी आपने? मुहर्रम में आपने ये सीखा, बहुत अच्छा। और कोई बता सकता है जो आपने करबला में सीखो अच्छा अमल? शाबाश बेटी। एक ही बात बताओ, चलो करबला के शहीदों ने जिनके अमल से हमने कोई एक अच्छा काम सीखा हो। शाबाश। डरते नहीं थे। बहुत अच्छा, डरते। जैसे ये बेटी डरती नहीं है, जवाब देने से डरती नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भी कोई बता सकता है? डरते नहीं थे, लेकिन हम डरते हैं कि टीचर की कोई बात समझ में ना आए। 1 मिनट, टीचर की कोई बात समझ में नहीं आए तो कोई हैंडसअप नहीं करता, टीचर मुझे आपकी बात समझ में नहीं, आगे ना बढ़िए। डरते हैं ना? टीचर डांटेगा, जबकि टीचर के हाथ में पेन होता है। करबला के लोग, करबला वाले किन से नहीं डरते थे? जिनके हाथ में क्या होती थी? तलवार होती थी, उनसे नहीं डरते। और हम किन से डरते हैं? जिनके हाथ में क्या होता है? जिस टीचर के हाथ में पेन होता है, हमारी बेटियां उससे डरती है। नहीं पूछेंगे, नहीं ऐसे नहीं जानेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, ऐसे ही जाएंगे। लेकिन कितनी अच्छी बात इस बेटी ने कही, करबला वाले डरते नहीं थे। वो लोग 72 लोग थे और उनके मुकाबले में कितने थे? 9 लाख नहीं थे, 30,000। कितने हजार थे? 30,000। वो 30,000 से नहीं डरे, उनके हाथों में तलवारें थी। हम डरते हैं। उन पर जुल्म हुआ, लेकिन उन्होंने इस्लाम का रास्ता नहीं छोड़ा। कितनी अच्छी बात की इस बेटी ने। उन पर जुल्म हुआ, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, इस्लाम का रास्ता नहीं छोड़ा है। हम छोटी छोटी बातों पर नमाज छोड़ देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर क्या नमाज छोड़ देते है ना? छोटे छोटे बहानों पर। आज शादी में गए, शादी में नमाज माफ। आज शादी में गए, शादी में नमाज। हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए, आज नमाज क्या है? माफ।
कितनी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा, उन्होंने दीन का रास्ता नहीं छोड़ा। ये किचन की चीज है। और भी कोई बता सकता है? शाबाश, बहुत अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। क्या कहा? हाँ, उन्होंने हक का साथ दिया, गलत का साथ नहीं दिया। ठीक है, वो कम तादाद में थे, लेकिन उन्होंने हमेशा किसका साथ दिया? हक का साथ दिया। लेकिन जब हमें हक का साथ देना होता है, हम हमारे बच्चों को हक का साथ देना होता है, हमारे डैडी को हक का साथ देना होता है, तो हम क्या कहते हैं? नहीं डैडी छोड़िए, अपने को इस लड़ाई में क्या न डालिए। हक का साथ देना, हक हमारे साथ हो, किसी के साथ हो, हक का साथ देना चाहिए। बहुत अच्छा जी। सबको माफ करते थे। हाँ, जैसे एग्जाम्पल, मिसाल, जैसे हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शहज़ादे अली अकबर के खातिर को माफ किया था। उससे पहले भी कुछ हुआ? हाँ, हजरत हुरी ने मौला का क्या रास्ता रोका था? हजरत हुरी मौला को कहां लेके आए थे? करबला लेके आए थे। लेकिन एक मर्तबा हुर ने कहा मौला मुझसे गलती हो गई। मौला ने ये कहा नहीं नहीं, माफ नहीं करूंगा, तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तूने हमारा रास्ता रोका। ऐसा नहीं कहा, उसने कहा तौबा कबूल है। कहा हाँ तौबा कबूल है ना, है ना? तो हम कागज पर लिख देते हैं कि हम फलानी को क्या कभी माफ, उन्होंने हमें शादी पर नहीं बुलाया, हम माफ नहीं करेंगे, है ना? ऐसा ही होता है ना, हम माफ नहीं करेंगे। करबला वालों ने हमें सिखाया गलती किसी से हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए बेटी? क्या करना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। जी बेटा आ जाओ, हाँ आ जाओ बेटा, शाबाश, आ जाओ। हाँ, वादा नहीं तोड़ते थे, बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। करबला वालों ने वादा नहीं तोड़ा, जो उन्होंने इमाम हुसैन के साथ वादा किया वो वादा नहीं तोड़ा। बहुत अच्छा, अच्छा कहा या नहीं कहा? छोटे ने बड़ी बात की, छोटे ने बड़ी बात की। ये लो बेटा, एक आपको ये और दूसरा ये तार, अच्छा ठीक है बेटा, शाबाश। और कोई? अपने सारे बच्चों को कुर्बान कर दिए दीन के लिए। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बेटी। अब आपको दूसरा इनाम दूं या मिल चुका आपको? आपको भी मिल चुका है। और भी कोई? सब्र, किसने कहा? शाबाश, हाँ उन्होंने सब्र किया, हिम्मत नहीं हारी। बहुत अच्छा, इनको भी इनाम देंगे। ये सारे इनाम हम बांटेंगे, जो बचेंगे मैं लेके जाऊंगा। जाओ बेटी। अमर बिल मारूफ, किसने कहा? अमर बिल मारूफ। देखिए कितनी अच्छी बात की। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम रोज आशूरा बार बार लश्कर उमर साद के सामने जाते थे। अमर बिल मारूफ यानी उनको अंधेरे से निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको बुराइयों से निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको क्या गुनाहों से निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको शैतान के रास्ते पर बचाने की कोशिश कर रहे थे, शैतान के रास्ते से बचाने की कंटिन्यूअसली कोशिश करते थे। हम में से कोई अमर बिल मारूफ नहीं करता। मेरे घर में मजलिस होगी, कोई ये नहीं कहता अरे फलान आलिमा, फलान जाकिरा, देखिए यहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जरा प्लीज आप नमाज की अहमियत के बारे में 2 हदीसें बयान कीजिएगा। कोई कहता है? क्यों? जाकिरा नाराज हो जाएगी, है ना? कोई कहता है? कोई नहीं कहता जाकिरा से। जाकिरा साहिबा जरा सुनिए, यहाँ के लोग क्या नमाज की इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यहाँ के लोग कुरान को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यहाँ के लोग दीन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यहाँ के लोग हिजाब को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यहाँ के लोग एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यहाँ के लोग तालीम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यहाँ के लोग माँ बाप का केयर नहीं करते हैं। जरा इसके बारे में भी क्या 2 बातें बताइएगा। कोई कहता है? कोई आप में से इस नियत से मजलिस करता है मैं मजलिस करूंगी और फिर एक जाकरा से कहूंगी, लेकिन जाकरा से पहले ही कह के रखूंगी हमारे इस मोहल्ले में तालीम के बारे में कोई फिक्र नहीं है, हमारे मोहल्ले में एजुकेशन के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मजलिस करेंगे, फीस नहीं भरेंगे, मजलिस करेंगे, फीस नहीं भरेंगे। जरा इनको बताइएगा, जितना मजलिस का सवाब है उसी तरह बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना भी क्या है? बड़ा
सवाब है। उसी तरह तालीम याफ्ता बनाना भी बड़ा सवाब है। जिस पाबंदी के साथ आप मजलिस में जाते हैं, उस पाबंदी के साथ अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखने के लिए स्कूल का कभी कभी चक्कर लगाना भी क्या है? सवाब है, जिम्मेदारी है। जिस तरह नमाज पढ़नी जिम्मेदारी है, उसी तरह बच्चों की तरबियत की बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की एजुकेशन भी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की तालीम भी क्या बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह करबला के शहीदों ने इमाम के नासिर बनकर हक अदा किया, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इमाम ज़माना के नासिर बनने के लिए क्या करें? आमादा करें, अच्छी तरबियत करें। लेकिन हम डरते हैं, नहीं अरे ये ज़ाकिरा नाराज हो जाएंगे। हमें भी अमर बिल मारूफ करना है। वो कैसे? जिसको हम बुलाएंगे उसको पहले ही बात करके रखेंगे। हम मजलिस करेंगे, वहां 50 लोग होंगे, लेकिन आपका टॉपिक ही रहेगा। हम घर में मजलिस करेंगे, नियाज भी होगी, लेकिन आपका टॉपिक ज़ाकिरा साहिबा ये रहेगा। उसने कहा नहीं, मैं इन बातों पर नहीं कहूंगी, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको दीन की इतनी शिनाख्त होनी चाहिए, आपको उनसे कहना चाहिए मगर मौला हुसैन किस लिए निकले थे, मगर मौला अब्बास ने किस लिए बाजू काटे थे, ये आपको पता होना चाहिए। अमर बिल मारूफ बहुत बड़ी बात उन्होंने की, इनको 2 इनाम मिलेंगे। ये लो बेटा, आप इनाम बांट रही है ना? तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपने भी जवाब दिया, बहुत अच्छा मेरी बेटी, बहुत अच्छा। क्या जवाब दिया? हाँ ये बताओ, जवाब देना, बताओ। उन्होंने सबर किया, बहुत अच्छा। इधर आओ प्यारी प्यारी बेटी, इधर आओ प्यारी प्यारी बेटी। ये रहा आपका इनाम। और ये आपके साथ ये जो आपकी बहन है, सगी बहन है, तो आपकी बहन को भी एक इनाम। तो आप भी बताइए आपको क्या कहना है? आपने मुस्कुराना है। ये लीजिए, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, ये लो आपका टारिच, ये लो आपका टारिच। शाबाश शाबाश। देखिए हमने इनको टारिच दिया, इनकी अच्छी माँ अच्छी तरबियत करेगी, ये इल्म का चराग जलाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ जितने बच्चे हैं उन सब की सेहत के लिए, सलामती के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए। तो ये कितनी बड़ी बात मेरे मौला ने कही कि बहुत सारे लोग अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं, अली जैसे अच्छे लोगों के साथ, जहरा जैसे अच्छे लोगों के साथ, हसन और हुसैन जैसे अच्छे लोगों के साथ, और औलाद जहरा जैसे अच्छे लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका अच्छा अमल नहीं करते हैं। फिर मौला ने बताया 10 चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगा, 5 ही चीज़ें बतानी पड़ेगी। फिर बताया चौथी चीज़ बच्चों, चौथी चीज़ बच्चों, आप लोग लिख रहे हैं? आप लोग लिख रहे हैं? उन लोगों में से कितनी प्यारी बात मेरे मौला ने कही। आप में से किसी को मौत का डर लगता है या नहीं लगता है? लगता है। ये डर क्यों लगता है? मौला फरमाते हैं उन लोगों में से मत होना जो गुनाह की वजह से मौत से लेकिन गुनाह छोड़ते नहीं हैं। उन लोगों में से मत होना जो गुनाह की वजह से मौत से लेकिन गुनाह को छोड़ते। मौत से क्यों डर लगता है कि हमने गुनाह किए और उधर चले जाएंगे तो हमें मार पड़ेगी।
موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اگر کسی نے ساری زندگی اچھے کام کیے ہو، اس کو موت کا ڈر نہیں لگے گا. اس کو پتا ہے میں نے اچھے عمل کیے ہیں اور اس دنیا میں میرا گھر کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، مجھے جنت میں جگہ ملے گی. ڈر کس کو لگتا ہے؟ جس نے گناہ کیا ہو. مولا فرماتے ہیں دیکھو اگر موت سے ڈرتے ہو گناہ کرنے کی وجہ سے تو یہ گناہ چھوڑتے کیوں؟ اگر گناہ کرنے کی وجہ سے موت سے ڈر لگتا ہے تو یہ گناہ چھوڑنا چاہیے. یہ کیسی عقل مندی ہے؟ کسی بات سے ڈر لگتا ہے اور لیکن اس سے چھوڑتے بھی نہیں ہو. ہاں کورونا میں دیکھا آپ نے، لوگوں کو ڈر لگتا تھا. کس بات سے؟ بھیڑ بھاڑ سے ڈر لگتا تھا. لوگ پھر بھیڑ بھاڑ میں جاتے نہیں تھے، ماسک پہن کے نکلتے تھے، ہے نا؟ ماسک پہن کے نکلتے تھے نا. مولا فرماتے اگر گناہوں سے ڈر لگتا ہے، ہاں نہیں، گناہ کی وجہ سے موت سے ڈر لگتا ہے تو گناہ چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ ہم میں سے ایسے اکثر لوگ ایسے ہیں، موت سے ڈر لگتا ہے گناہ کی وجہ سے، لیکن وہ گناہ جو ہمارے لیے موت کو ڈراؤنا بناتے ہیں اس گناہ کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. 5واں پوائنٹ، اور آپ کی زحمت تمام. کیوں؟ اس لیے کہ 6:15 ہو چکا ہے. 5ویں بات، 10 بات کے بجائے 5 ہی بات کہہ سکا. کل تو میں 2 ہی بات کہہ سکا. کبھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے اس نے فلان کام کیا اور ہم انگلی اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں. ارے توبہ توبہ، اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس عورت نے اپنی سہیلی کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس عورت نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس عورت نے کیا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیا ہے. مولا فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے مت ہونا جو دوسروں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیا ڈرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود اس سے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں. خود اس سے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں. دوسروں سے چھوٹے گناہ سرزد ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں ارے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود ہم اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں. مولا فرماتے تمہیں ایسے لوگوں میں سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اکثر ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جب ان سے چھوٹی غلطی سرزد ہوتی ہے اور ہم سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کیئر کرتے نہیں ہیں. ہم اکثر ایسے ہی ہیں، دوسرے سے معمولی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اپنا کیا آسمان سر پر اٹھا دیتے ہیں اور ہم سے کیا بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی غلطیاں، بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے، لیکن ہم کیا ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. مولا فرماتے تم ایسا مت بنو، بلکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے. اگر تمہیں چھوٹی سی غلطی سرزد ہو جائے تمہیں پریشان ہونا چاہیے. ہاں، اپنی غلطیوں پر انسان کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے. خداوند منان ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. خداوند منان علی علیہ السلام اور آل علی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ جو ہم نے یہاں باتیں مولا علی علیہ السلام کی ان اچھی علمی اور نصیحت آموز باتوں کے صدقے ہم سب کے مرحومین کو کروٹ جنت نصیب فرمائیں. جن والدین نے آپ سب کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی ہے، وہ والدین اگر اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا ان سب کو علی مرتضیٰ کی شفاعت نصیب فرمائیں. خدا ان سب کو بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. خدا ایسے تمام والدین کو جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے زحمت برداشت کی ہے اور اس وقت قبر میں سو رہے ہوں، خدا ان تمام والدین کو کروٹ جنت نصیب فرمائیں.
जन्नत में उनको बुलंद जगह इनायत फरमाएं, जन्नत में मोहम्मद और आल मोहम्मद के साथ उन सबको मशहूर फरमाएं, जन्नत में खुदा उन सबको अपने नेक और प्यारों के साथ मशहूर फरमाएं। अगर उनके कोई गुनाह सरज़द है उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएं। फिशारी कब्र, तंगी कब्र, वहशत कब्र उनके लिए आसान फरमाएं। कुरान के नूर से उनकी कब्रों को नूरानी फरमाएं, अहले बैत के नूर से उनकी कब्रों को नूरानी फरमाएं। तमाम मरहुमीन की मगफरत के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए, आप में से जिसके सर से माँ बाप का साया उठ गया हो, मेरी माँ बाप के साथ साथ उन तमाम वालिदैन की मगफरत के लिए जिन्होंने आज के इस क्लास के लिए जहमत की, ये इनामात लाए और ये नियाज बांटा, ये तबरुक बांटा, उन सब की मरहुमीन की मगफरत के लिए जो हैदराबाद में इस तरह के प्रोग्रामों के लिए दिन रात मेहनत मशक्क़त करते हैं, उन सब के मरहुमीन की मगफरत के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा सूरह हमद, एक मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके उन सब की रूह को बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी छोटी सी कोशिश खुदा की बारगाह में कबूल होने के लिए बीवी ज़हरा और औलाद ज़हरा की शान में सलाम कर दीजिए।